Newton's laws of motion. So first we take the introduction. Name Sir Isaac Newton. He was a great mathematician and he introduced the three laws of motion. He introduced three laws of motion. The first law is the law of inertia. So we will see first what is inertia. Inertia is nothing but the tendency of a bodies or objects to remain in the original initial state of rest or uniform motion is called as the inertia. So what does it means? It means किसी भी ऑब्जेक्ट की क्षमता जो उस ऑब्जेक्ट को उसके ओरिजिनल फॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन में रखती है उसे हम इनर्शिया कहते हैं. यानी अब मैं एग्जांपल दूँ, अगर एक सैटेलाइट जो कि स्पेस में स्थित है तो वह हमेशा उसकी ओरिजिनल फॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन एंड सेम डायरेक्शन में रहता है, जबकि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो. अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है तो फिर वो उसका यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन चेंज कर सकता है. पर अगर सब एनी एक्सटर्नल फोर्स कोई अप्लाई नहीं है तो उसकी यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन और उसका स्टेट सब सेम होगा. तो inertia is nothing but the tendency of bodies or objects to remain in the original initial state of rest और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड एज inertia. यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की क्षमता जो उस ऑब्जेक्ट को उसके ओरिजिनल फॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन में रखती है उसे हम कहते हैं inertia. Inertia is of two types, inertia of rest and inertia of motion. So first we see the first law of the Newton's. So a body continues in its state of rest or uniform motion in a straight line in the same direction unless some external force is applied to it. यानी कोई बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट सेम स्टेट ऑफ रेस्ट और एंड यूनिफॉर्म मोशन एंड इन द सेम डायरेक्शन में रहती है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं करता. दिस इज द फर्स्ट लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया. सो वी विल टेक सम एग्जांपल्स ऑफ द फर्स्ट लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया. Okay. The first example is to remove the dirt from the coat. We hit it with a stick. यानी कि अगर हमारा कोई कोट है और उस पर कुछ डर्ट है तो हम एक स्टिक से ऊपर उस पर हिट करते हैं. जब हम उस पर हिट करते हैं तो जो कोट रहता है वो एक मोशन में आ जाता है और डर्ट को उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट में जाती है. तो इसकी वजह से जो डर्ट है वो कोट से अलग हो जाता है. मीन्स टू रिमूव द डर्ट फ्रॉम अ कोट वी हिट इट विथ अ स्टिक. ऑन बीइंग हिट द कोट कम्स इनटू द मोशन बट द डर्ट ड्यू टू इट इनर्शिया रिमेन्स एट द रेस्ट. और इसी वजह से डर्ट होता है वो कोट से अलग हो जाता है. सेकंड एग्जांपल इज इफ अ ट्रेन सडनली स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम द पोजिशन ऑफ रेस्ट देन अ पैसेंजर सिटिंग इट लीन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. यानी कि जैसे कि कोई पैसेंजर ट्रेन में बैठा है और अचानक ट्रेन शुरू हो गई तो पैसेंजर लीन करता है इन अपोजिट डायरेक्शन टू द ट्रेन बिकॉज द ट्रेन इज इन द मोशन बट द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड possesses inertia of rest, so it leans in the opposite directions. This happens due to the inertia of the body of the passenger. ये क्यों होता है? क्योंकि जो पैसेंजर बैठा है ट्रेन में वो बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में चली जाती है. This also proves the Newton's first law. This example proves Newton's first law. Then example number 3. Before taking a long jump, an athlete runs for a while and then takes a leap. By running for a while, he gains inertia of motion, which helps him to take longer jump. And कोई एथलीट उसको लॉन्ग जंप करना है तो वो क्या करता है? रनिंग लेता है. रनिंग लेने से क्या करता है? He gains inertia of motion, and once he gains the inertia of motion, then he can jump in a long way. So this also examples proves the first law of Newton, that is the law of inertia. So we will take another law, second law of motion. So second law of motion, Newton's second law of motion is all related to the law of measurement of force. Second law is all related to the law of measurement of force. What it said, the rate of change of the linear momentum of a body is proportional to the force applied and it takes place in the direction of the force. यानी कि the rate of change of linear momentum, this concept about the linear momentum I have already discussed in the part 6. So I will provide a link in the description about the linear momentum, but I will give a small idea
फॉर दिस वीडियो, दिस लीनियर मोमेंटम यानी कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो होता है वही लीनियर मोमेंटम होता है। सेकंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन द लीनियर मोमेंटम। इट इज सिंपल, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द लीनियर मोमेंटम, यानी कि P जो है वो लीनियर मोमेंटम इसे हम डिनोट करते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। तो चेंज इन द लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यही डेफिनेशन में कहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम with respect to the time of the body is proportional to the force applied, and it takes place in the direction of the force. So this linear momentum is nothing but product of mass and velocity. So put this value in this k into d by dt of mv. If we take m outside, km dv by dt. So what is the change in the velocity with respect to time is acceleration. So this quantity is like acceleration. Displacement I have already given in the video part number 4, you can see there. So this law is also called as the law of force and acceleration, because this we have proved here force is equal to mass into acceleration. So second law, that is law of measurement of force, is also called as the law of force and acceleration. So we will take some example, कुछ example देखते हैं. When we kick a ball, we exert force in a specific direction, which is the direction in which it will travel. यही एक एग्जाम्पल है और न्यूटन सेकंड लॉ का. एंड सेकंड एग्जाम्पल इज पुशिंग अ कार इज ईजियर दैन पुशिंग अ ट्रक. पुशिंग अ कार इज ईजियर दैन पुशिंग अ ट्रक with some amount of force as the mass of the car is lesser than the mass of the truck. So this example proves that as you know force is equal to mass into acceleration, यानी द कार का मास लेस है और ट्रक का मास ज़्यादा है, इसीलिए इट इज़ ईजियर टू पुश द कार रादर देन द ट्रक. ट्रक से कार को पुश करना आसान हो जाता है. तो ये एग्जांपल प्रूफ करता है सेकंड लॉ, द लॉ ऑफ मेजरमेंट ऑफ द फोर्स. So now we will take the third law of the Newton's. Third law of Newton's third law is all related to the law of action and reaction. Law of action and reactions. यह कहता है कि to every action there is an equal and opposite reactions. To every action there is an equal and opposite reactions. For example, अगर आपने कुछ फोर्स लगाया अपने हाथ से वॉल पर, भिंत वॉल पर कुछ फोर्स लगा है अपने हाथ से, तो क्या होता है कि इन रिएक्शन टू दिस फोर्स वॉल भी हमारे हाथ पर कुछ फोर्स लगा देती है, इसलिए हमारा हाथ हर्ट हो जाता है. तो इन द सेम टू एवरी एक्शन, एक्शन क्या है, हम वॉल पे फोर्स लगा रहे हैं, ये आपका एक्शन हो गया. देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी वॉल हमारे हाथ पर कुछ रिएक्शन दे रहा है, तो ये हो गया हमारा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस. सो एक्शन एंड रिएक्शंस एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज. डिफरेंट बॉडीज कैसे हो गया कि एक्शन हम वॉल पे कर रहे हैं और रिएक्शन हमारे हाथ पर हो रहा है. सो एक्शन एंड रिएक्शंस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज सिंस देयर लाइन्स ऑफ एक्शन आर डिफरेंट. सो रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट जीरो, बिकॉज डिफरेंट बॉडीज हो गया. एक्शन हम वॉल पर कर रहे हैं, रिएक्शन हमारे हाथ पर हो रहा है, तो दोनों बॉडीज अलग अलग है. तो अगर दोनों बॉडीज अलग अलग होगा तो देयर लाइन्स ऑफ एक्शन भी डिफरेंट होगा एंड रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा. So this is the Newton's third law of motion. क्या है, action and reaction, that is to every action there is an equal and opposite reaction. This is the Newton's third law. So we will take some examples. First, a rocket whose mass decreases continuously due to the ejected mass in the form of gases during its forward motion. यानी कि अगर कोई रॉकेट है, रॉकेट कंटिन्यूसली क्या होता है, उसका मास डिक्रीज होता है, यानी इसका एक्शन क्या है कि रॉकेट मूव हो रहा है, फॉरवर्ड मोशन मूव हो रहा है. रिएक्शन क्या हो रहा है, उसका मास इजेक्टेड मास इन द फॉर्म ऑफ गैसेस से उसका मास कम हो रहा है, वो उसका रिएक्शन हो गया. दिस प्रूव्स द न्यूटन्स थर्ड लॉ. सेकंड एग्जांपल इज ड्यूरिंग फायरिंग ऑफ बुलेट द गन रिकॉइल्स बैक विद द ग्रेट फोर्स. यानी कि जब हम गन से फायर करते हैं तो क्या होता है, जो गन रिकॉइल्स होता है बैक विद अ ग्रेट फोर्स, ओके, और रिलोड होता है. So this example also proves Newton's third law. And the third example is to drive a water boat forward, a bamboo stick is pressed into the land of water. यानी कि बोट को फॉरवर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं,
हमारे बाम्बू के स्टिक से वाटर को अपोजिट साइड में प्रेस करते हैं। तो दिस ऑल्सो प्रूव्स द न्यूटन्स थर्ड लॉ। फोर्थ इज ड्यूरिंग पुलिंग वाटर फ्रॉम द वेल समटाइम्स रोप ब्रेक्स एंड मैन फॉल्स बिहाइंड द वेल। यानी यहाँ पे एक्शन क्या होता है, एक्शन है रोप ब्रेक हो गया है और द मैन जो मैन है वो बिहाइंड अपोजिट साइड में फॉल हो जाता है। तो एक रिएक्शन क्या हो गया, इंसान फॉल हो गया अपोजिट साइड में और एक्शन है रोप ब्रेक हो गया है। और यहाँ पे क्या है, एक्शन क्या है, टू ड्राइव वाटर बोट एक्शन है कि बोट फॉरवर्ड मोशन ले रही है, फॉरवर्ड जा रही है। और रिएक्शन क्या है, हम उसे वाटर को प्रेस कर रहे हैं, इसीलिए वो आगे आगे जा रही है। ओके, एंड इन द सेकंड एग्जांपल क्या हो रहा है, एक्शन क्या है, फायरिंग ऑफ बुलेट इज द एक्शन एंड रिकॉइल्स बैक विथ ग्रेट फोर्स इज द रिएक्शंस। और इसमें फर्स्ट एग्जांपल में एक्शन क्या है, ये रॉकेट फॉरवर्ड मोशन में जा रहा है पर उसका रिएक्शन क्या हो रहा है कि मास उसका डिक्रीज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। ओके, so this is all about the Newton's laws of motions, Newton's first law, second law, third law. First law is the law of inertia, second law is the law of measurement of forces, which means law of force and acceleration, and third law is all about the law of action and reactions. So that's all about the video. If you are new to the channel in physics, please subscribe. I request and suggest you to subscribe the channel. And if you like this video, please click on the like. If you do not like the video, please you can click on the dislike button, but don't forget to comment why you are disliking the video. But my request is to please subscribe the channel so that you got the notification of new updated videos. Thank you.